Assalamu alaikum students. How are you all? I hope that all of you are very fine by the grace of Allah Almighty. Today we are going to start our lesson number 6. But before starting it, please place your computer book in front of you so it will help you to understand the explanation more clearly. On page number 41, you have your chapter 7, but we are considering it our chapter 6, which is problem solving and flow charting. It is the title of your lesson number 6. So, what is problem solving and what is flow charting? In this lesson, we will study about the problem solving process of computer, that how can a computer solve a problem, and flow charting, what is the process of flow chart and what is a flow chart, what are the symbols of flow chart. All of these things are explained in this lesson. So let's start with the introduction. A computer cannot solve a problem itself. In order to solve a problem, computer needs a set of instructions which is called as algorithm. कंप्यूटर कोई भी प्रॉब्लम खुद से सॉल्व नहीं कर सकता. यू विल हैव टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर कि उसे किस तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है या वो प्रॉब्लम क्या है. ओके, कंप्यूटर को किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस की ज़रूरत होती है, एक सेट ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है, किसी भी तरह की कैलकुलेशंस करने के लिए या किसी भी तरह की एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए. हम कंप्यूटर को एक सेट्स ऑफ रूल्स की ज़रूरत होती है जिसे एल्गोरिथम कहा जाता है. ओके, so the process of problem solving needs a method or set of rules which is known as algorithm. There are two basic requirements to develop an algorithm. एक algorithm की two basic requirements होती हैं. वो requirements क्या हैं? The instructions should be clear. अगर आप कंप्यूटर पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपके इंस्ट्रक्शंस क्लियर होने चाहिए. Those instructions which you are giving to the computer. Okay, those instructions should be clear. Number 2, the desired result should be output in a finite number of steps. And वो result या वो calculation जो आप कंप्यूटर से सॉल्व करवाना चाह रहे हैं वो एक प्रॉपर स्टेप में होनी चाहिए, ताकि जब आपके पास रिज़ल्ट आपके सामने आए या आउटपुट आपके सामने आए तो वो एक प्रॉपर स्टेप्स की फॉर्म में हो. ओके, इन अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, उसमें हर स्टेप इंक्लूडेड होना चाहिए, कोई भी एक स्टेप उस पर मिस नहीं होना चाहिए. सो अ कंप्यूटर नीड्स अ प्रोसेस और सेट ऑफ रूल्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड नो स्टेप शुड बी स्किप्ड इन दिस प्रोसेस. कोई भी स्टेप इसमें स्किप नहीं होना चाहिए और इस पूरे प्रोसेस को और सेट ऑफ रूल्स को एल्गोरिथम कहा जाता है. प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस? ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स. नाउ हियर आर some steps are given which are necessary for the problem solving process of computer. The first step is define the problem. Okay, everything is explained in this phrase, that define the problem, that what is a problem. You will have to define the problem in first step. सबसे पहले आपको ये define करना पड़ेगा that what is your problem actually. आप किस तरह की कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं या आपका प्रॉब्लम क्या है. ओके, अगर आप कोई प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसका पर्पस क्या है, किस तरह का डेटा उसमें यूज़ होगा,
किस तरह का आउटपुट या रिज़ल्ट आपको चाहिए और क्या उसका इनपुट होना चाहिए. इनपुट मीन्स कि आप जो उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड कर रहे हैं वो क्या हैं. सो अ प्रॉब्लम शुड बी डिफाइंड. स्टेप नंबर 2, solve the problem. Keeping the algorithm in mind, a program is written to solve a problem. What is the main thing in the computer's problem solving process? It is algorithm. Okay, so algorithm should be in your mind. अगर आप computers का problem solving process यूज़ कर रहे हैं तो जो algorithm है उसका set of rules है या जो process है वो आपके mind में accurate होना चाहिए. Okay, that what do you want to do, कि आप actual में आप क्या problem है आपकी और आप क्या चाह रहे हैं. तो the algorithm should be enabled into your computer and it should be designed carefully. आपका algorithm बहुत carefully design होना चाहिए and it must be accurate. And it is the second step of problem solving process. Number 3, drawing flow chart. Flow chart is a kind of chart which is used by making different symbols. It means कि जो जो statements आप अपने algorithm में या जो जो steps आप अपने algorithm में put करेंगे उस हर step के लिए एक अलग अलग symbol होता है. जैसे input statement के लिए अलग symbol है, start के लिए अलग है, stop के लिए अलग है and calculations के लिए अलग symbol होता है. ये सब symbols आपको आगे explain किए हुए हैं. तो flow chart is nothing actually, but it is a pictorial representation of your algorithm. आपके algorithm की एक pictorial representation होती है. जैसे उसमें words भी यूज़ किए जाते हैं और कुछ symbols यूज़ किए जाते हैं step by step, ताकि आपको समझ में आ सके that सबसे पहला step क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा. Okay, so flow chart defines your पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. आपके एल्गोरिदम की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको फ्लो चार्ट के थ्रू पता लगती है. नंबर 4 इज़ प्रोग्राम कोडिंग. प्रोग्राम कोडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस इन द एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोग्राम कोडिंग, जो प्रोग्राम आप डिज़ाइन कर रहे हैं या जिस प्रोग्राम के लिए आपने एल्गोरिदम प्रिपेयर किया है वो एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होना चाहिए. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? हाई लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज. एंड कंप्यूटर में जो नॉर्मली ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ होती है वो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ मशीन लैंग्वेज. ओके, सो दैट प्रोग्राम शुड बी रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में राइट होना चाहिए. और जब उसको फ्लो चार्ट की मदद से उसको आप इजीली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप चाहते हैं. ओके, सो अ प्रोग्राम कोडिंग मीन्स दैट यू शुड यूज़ अ करेक्ट लैंग्वेज in that process. Step number 5, testing and debugging. Testing and debugging are the vital steps in developing computer programs. If you are developing a computer program, testing and debugging, it means that you'll have to test your program. You'll have to test your algorithm. कि आपने जो algorithm create किया है वो सही है या नहीं. आप उसका test करेंगे, then आपको पता लगेगा कि आपसे कोई step miss तो नहीं हो गया या उसमें कोई issue तो नहीं है. Debugging is the process of locating and eliminating errors. Debugging वो process होता है जिसके थ्रू हमें ये पता लगता है कि हमारे एल्गोरिदम में या हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में कोई एरर तो नहीं है, तो वो हम उसको लोकेट कर सकते हैं और उस एरर को एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड द लास्ट स्टेप इज़ डॉक्यूमेंटेशन. Documentation is the process of recording details concerning a computer program. जो प्रोग्राम या जो एल्गोरिदम आप डिज़ाइन कर रहे हैं जिस प्रोग्राम के लिए, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है. जब आप उस प्रोग्राम की डिटेल्स एक जगह पर सेव कर लेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे, तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू इन फ्यूचर. सो these 6 were the steps of problem solving process of a computer.
Okay, so the next topic is program flowcharts. Flowcharts graphically defines the solution of a problem before a computer program is written for it. फ्लोचार्ट्स एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्चर होती है कि जो प्रोग्राम या जिस प्रोग्राम के लिए आप जो एल्गोरिदम क्रिएट कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो फ़्लो चार्ट्स ड्रॉ करने का मकसद ये है कि उससे हमें स्टेप बाय स्टेप पता लगता है कि कंप्यूटर का प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्या होगा। एंड उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, एरोज़ यूज़ किए जाते हैं। जब हम एरोज़ यूज़ करते हैं तो वो एरोज़ हमें ये एलेबोरेट करते हैं, ये डिफ़ाइन करते हैं कि इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप होगा, एंड देन वो सेकंड स्टेप होने के बाद अगेन एक एरो आपको शो किया जाता है और थर्ड स्टेप की तरफ वो एरो पॉइंट कर रहा होता है। तो इस एरो के थ्रू आपको पता लगता है कि स्टेप वाइज क्या काम होगा और किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैप दैट जब आप उसको देखेंगे, आप जब फ्लो चार्ट को रीड करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा दैट कि जो फ़्लो चार्ट आपने क्रिएट किया है वो सही है या नहीं, क्योंकि उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में काफ़ी हेल्प होगी। एंड देन इट विल शो यू द डायरेक्शन बिकॉज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मैप। सो फ़्लो चार्ट ड्रॉ करने से आपको हमें ईजी होता है अपने ही प्रॉब्लम को या अपने ही प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में। Program flowchart samples. To draw flowchart samples, flowcharting template is usually used which contains a set of symbols, different shapes, needing and developing flowcharts. जैसा कि आप लोग स्टेंसिल्स यूज़ करते हैं, उस स्टेंसिल्स में डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट नंबर्स आपको गिवन होते हैं, राइट? उसी तरह फ्लो चार्टिंग का भी एक टेम्पलेट आता है, एक स्टेंसिल आता है। उस स्टेंसिल को यूज़ करते हुए हम फ़्लो चार्ट्स ड्रॉ करते हैं फॉर आवर प्रोग्राम के हम कौन सा प्रोग्राम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में एंटर करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू बाय दैट फ़्लो चार्टिंग टेम्पलेट। उस टेम्पलेट को, स्टेंसिल को बाय करने के बाद हम उसमें से शेप्स ड्रॉ करते हैं। सो व्हाट आर दी सिंबल्स ऑफ फ़्लो चार्टिंग? द फर्स्ट सिंबल इज़ टर्मिनल सिंबल. What is a terminal symbol? A terminal symbol is the starting and the end symbol. कि आप स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे एंड एंड करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट एंड एंड के लिए जो सिंबल यूज़ होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ ओवल सिंबल. इट शुड बी ओवल. You will draw an oval by using your stencil and then you will write start in between. आप उस ओवल को ड्रॉ करके उसके बीच में स्टार्ट लिखेंगे एंड देन जब आपका प्रोग्राम एंड हो रहा होगा तो आप अगेन ओवल ड्रॉ करके उसके बीच में एंड लिखेंगे. सो दिस इज़ अ टर्मिनल सिंबल. सेकेंड सिंबल इज़ प्रोसेसिंग सिंबल. It is used to indicate any type of arithmetic calculations, like those calculations which you want to solve. जैसे आप किसी नंबर, आप बहुत सारे नंबर्स का सम निकालना चाह रहे हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, आप उन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, वो तमाम कैलकुलेशंस या वो फार्मूलाज आप इस सिंबल में लिखते हैं. और वो सिंबल क्या होता है? प्रोसेसिंग सिंबल इज़ रेक्टेंगल. It is an rectangle. Rectangle is used for arithmetic calculations. Next symbol is input and output symbol. It is used to indicate any input or output operations. आपका इनपुट क्या है, आपका आउटपुट कैसे होना चाहिए. जैसे आउटपुट आपका प्रिंट हो गया या आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं या कुछ भी, तो वो आप इस सिंबल में लिखेंगे. एंड दिस सिंबल इज़ अ काइंड ऑफ अ बोर्ड सिंबल. बोर्ड किस तरीके से होती है, नीचे से वो एक रेक्टेंगल की शेप में तो नहीं होती, उसके जो साइड्स होते हैं वो क्रॉस्ड होते हैं, अ बोर्ड शेप्ड. दिस इज़ अ इनपुट आउटपुट सिंबल. डिसीजन सिंबल. डिसीजन सिंबल क्या होता है कि आपका जो डिसीजन है, आप क्या चाहते हैं कि उन सब नंबर्स का टोटल आपके पास आ जाए, सम आ जाए, जो भी आ जाए, उन सब के लिए डायमंड शेप यूज़ होता है.
Okay, flow lines. Flow lines are a kind of arrows that are used to connect all those shapes. जितने भी shapes आपने draw किए start से लेके end तक, उन सब को आप connect करेंगे with the help of flow lines. और ये flow lines arrows होते हैं. आप line draw करके उसके नीचे arrow draw करेंगे. And these are the flow lines which connects all the operations and all the shapes. So these were all the flowchart symbols. So here are some flowcharts which are given in your book on page number 44 and 45. These are just for the examples कि अगर आप एक flowchart draw करना चाहते हैं तो आप कैसे draw करेंगे. First flowchart is draw a flowchart to compute and print the sum and average of the given 4 numbers. आपको कोई भी 4 नंबर्स दिए गए हैं, आप उन 4 नंबर्स का सम निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ द स्टार्ट सिंबल. स्टार्ट सिंबल ड्रॉ करने के बाद आप फ्लो लाइन ड्रॉ करेंगे, ये जो एरो आपको नज़र आ रहा है. उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा योर इनपुट. आपका इनपुट क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर उन 4 नंबर्स को रीड करेगा. सो दैट इज़ योर इनपुट कि सबसे पहले उसे रीड किया जाए और समझा जाए. देन डिसीजन सिंबल. फ्लो लाइन ड्रॉ करने के बाद डिसीजन सिंबल में क्या यूज़ करते हैं हम कि हमें क्या चाहिए, हमें टोटल चाहिए इन 4 नंबर्स का, तो हम डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे. देन फ्लो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम प्रोसेसिंग सिंबल यूज़ करेंगे. हम अपना फार्मूला यूज़ करेंगे कि हमें क्या फार्मूला यूज़ करना है. उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ किया एंड देन अगेन हमने फ्लो लाइन्स ड्रॉ की और उसके बाद हमने हमने आउटपुट सिंबल ड्रॉ किया. आउटपुट क्या होता है, रिज़ल्ट. आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए, इसमें लिखा हुआ है प्रिंट टोटल AV. इट मीन्स कि मुझे इस प्रोग्राम का प्रिंट आउट चाहिए और जब मैं प्रिंट उस पर ऐड करूँगी अपने आउटपुट पे तो मेरी जो कैलकुलेशन होगी या जो रिज़ल्ट होगा मुझे प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा. उसके बाद मैंने फ़्लो लाइन ड्रॉ करने के बाद अपने फ़्लो चार्ट को स्टॉप कर दिया. सो दिस इज़ योर फ़्लो चार्ट. This is the flow chart which will you make for the sum of 4 numbers. Example number 2. Read any 2 numbers. Draw a flow chart which finds the largest number. आप 2 नंबर्स कंप्यूटर पे ऐड करना चाहते हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद फ्लो लाइन ड्रॉ करेंगे. देन वही आप कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे, इनपुट सिंबल, कि आपका इनपुट सिंबल क्या है. उसके बाद आप अपना डिसीजन आई एम सो सॉरी, दिस इज़ नॉट इनपुट सिंबल, दिस इज़ प्रोसेसिंग सिंबल. उसके बाद अपना डिसीजन सिंबल यूज़ करेंगे कि A इज़ ग्रेटर देन B, कि A B से ग्रेटर है या लार्जेस्ट नंबर है. तो प्रिंट B इज़ लार्जेस्ट नंबर, प्रिंट A इज़ लार्जेस्ट नंबर. आप अगैन ये सिंबल्स ड्रॉ करेंगे जो कि इनपुट और आउटपुट सिंबल है. उसके बाद आप फ्लो लाइन्स ड्रॉ करके उसको स्टॉप कर देंगे. फ़्लो चार्ट आप किसी भी तरह बना सकते हैं, ये सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि हमें किस तरह बनाना चाहिए. डिफरेंट फ़्लो चार्ट्स डिफरेंट तरीक़ों से बनते हैं. सो यू डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन और कॉम्प्लिकेशन regarding it because this is not very important, but you'll have to just identify the symbols of flowchart, okay, that which symbol is used for which thing. Draw a flowchart to find out the total sum of first 50 natural numbers. natural numbers वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. हमें 1 से लेके 50 तक natural numbers का सम पता करना है कि उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट सिंबल यूज़ किया एंड स्टार्ट लिखा. फिर फ्लो लाइन्स ड्रॉ करते हुए हम डिफरेंट सिंबल्स ड्रॉ करेंगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज़ अ प्रोसेसिंग सिंबल, देयर इज़ अ डिसीजन सिंबल एंड देयर इज़ अ इनपुट एंड आउटपुट सिंबल एंड देन देयर इज़ अ सिंबल ऑफ स्टॉप. सो दिस इज़ माई डिज़ाइन ऑफ अ प्रोग्राम. अगर मुझे एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है तो मैं उसको इस फ्लो में लेकर जाऊंगी. दीज आर ऑल माई स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रोग्राम.
Okay, so in this chapter we studied about the problem solving process of a computer and how to draw a flow chart and what are the symbols of flow chart. So here the explanation of the chapter ends. On page number 46 there is a summary given. Just read that summary properly and read the chapter properly too, so you will understand the explanation more clearly. Do complete your work on time and make sure that your work is done in neat and clean writing, and start learning for the revision. Take care of yourselves. Allah Hafiz.